So today's class, NSI, needle stick injury and transmission based precautions. Okay? First I will tell about needle stick injury. So what is the needle stick? It is an accidental injury which caused by the contaminated needles and medical shafts, which can lead to serious infections, okay, life-threatening infection like HIV, HBsAg and HCV, hepatitis C. तो who is exposed from NSI? कौन कौन exposed होगा? Doctors, nurses, lab technicians and waste handlers, right? An exposure that might place healthcare professionals at risk for the hepatitis B virus, hepatitis C or HIV infections. So it can be transmit two way. First is a percutaneous injury, right? Example, a needle stick injury or cut with sharp, medical sharps. And second is contact of mucous membrane or non-intact skins. Example, exposed skin that is chapped, abraded or afflicted with dermatitis. This is the first documented cases of HIV transmission from patient of healthcare worker was a United Kingdom nurses who sustained a needle stick injury whilst obtaining blood from the arterial line of an African patient with suffering from AIDS. ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंटेड केसेस कहाँ पे लिया गया, कहाँ मिला था, यूके में. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट लाइकली कॉजेस: अनसेफ वर्क प्रैक्टिस, रिकैपिंग, रिमूवल ऑफ प्लेबोटोमी ट्यूब होल्डर, फेलियर टू डिस्पोज प्रॉपरली, डिस्पोजल सिस्टम फेलियर्स, ओवरफुल कंटेनर्स, नीडल्स स्टिकिंग आउट ऑफ कंटेनर्स और प्रिसाइजिंग साइट्स. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम लोग होते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस. ठीक है, रिकैपिंग ऑफ नीडल इज मोस्ट कॉमन. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है. तो वन हैंड स्कूप मेथड पढ़ा है, जानते हो. सो नीडल स्टिक इंजरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंजेक्शंस. ठीक है, रिकैपिंग, कैरिंग नीडल्स एंड सिरिंज एंड पेशेंट मूवमेंट. लास्ट इज द इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल. This is data estimated risk of infection following NSI. High risk infection 30% of hepatitis B viruses, 3% of hepatitis C and 0.30% HIV. तो सबसे ज़्यादा है हाई रिस्क में हेपेटाइटिस बी 30%. क्या क्या डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं? प्रिवलेंस ऑफ वायरसेस इन पेशेंट पॉपुलेशंस. ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपोजर क्या क्या हो सकते हैं? प्रिकोटिनियस and mucocontagious. Extent of injury, superficial and deep injury. Types of devices, hollow bore and solid needle. Plasma viremia of sources. Check the immune system of healthcare workers. Immediate aftercare of use of PEP. What is the full form of PEP? Post या pre? Post exposure prophylaxis. सो एट रिस्क एक्सपोजर. ठीक है, सबसे पहले प्रिकोटोनियस, स्प्लैश एंड रिस्क इज मोर विथ. तो सबसे पहले प्रिकोटोनियस इंजरी में क्या होगा? हॉलो नीडल, सॉलिड शार्प, विजिबल ब्लड, डीप इंजरी, डिवाइस इन पेशेंट आर्टरी और वेन. पहला. स्प्लैश में क्या होगा? नॉन इंटैक्ट स्किन्स. ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन. रिस्क इज मोर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, severe injury. ठीक है, this is the at risk exposure of needle stick injury. How to prevent the needle stick injury? Organizing in physical layout of injection work area. ठीक है, minimize handling of injection equipments, do not carry, do not recap and do not bend. Cleaning the injection environment before and after injections. Safe disposal to prevent injury. What are the standard precautions? Barriers protections, hand washing is most important. Safe techniques, safe handling of sharp items, specimen, spill of blood and body fluids, use of disposable of sterile items. तो जो नीडल है ये किस बिन में जाएगा? नीडल वाइड बिन. ठीक है, और प्लास्टिक
प्लास्टिक रेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निडल कटर से निडल को कट करना है और उसको व्हाइट बिन में डालना है, ठीक है। देन जो व्हाइट पार्ट, जो उसका प्लास्टिक पार्ट है, वो जाएगा आपका रेड बिन में, ओके। वन हैंड स्कूप टेक्निक्स सबसे सेफ मेथड है ये, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है एनएसआई से, ठीक। वन हैंडेड स्कूप टेक्निक्स, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एनएसआई। अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं एनएसआई से तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली। सबसे पहले प्रोसीजर जो भी कर रहे हो व्हाटएवर, उसको स्टॉप करना है। देन इमीडिएटली क्लीन एक्सपोजर साइट, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ PEP, ओके। स्किन वुंड्स शुड बी वॉश विथ सोप एंड रनिंग वाटर. No evidence that antiseptics are useful, okay. Caustic agent bleach may do more harm than good. Flush mucous membrane thoroughly with water, no soap, ठीक है। Eye irrigated with, continue immediate management of NSI. Report the casualty medical officers. Promptly notify your supervisor. Fill out the needle stick injury form. जो स्मॉल ब्लड है, देखो इसमें क्या दिख रहा है, स्मॉल ब्लड। स्मॉल ब्लड क्या है, आपकी जान तो नहीं ले सकता है, लेकिन एक स्मॉल ड्रॉप जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है, वो बताया इसमें, ठीक है। देखो स्मॉल ब्लड है हाथ पे, ठीक है, फिर निडल में यही स्मॉल ब्लड जान तो नहीं ले पाएगी, छोटा सा इस ब्लड का स्मॉल वो टे ड्रॉप, लेकिन यही स्मॉल ड्रॉप जो है आपको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, HIV, HBCG एंड HCV, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ HIV, ठीक है। रेशनल फॉर HIV PEP. HIV infect dendritic cells, then regional lymph nodes before becoming systemic. AZT means, नाम सुना है AZT का, एजाइडोथायमिडीन, ठीक है। ब्लॉक इन्फेक्टिव ऑफ HIV इन्फेक्टेड डेंड्राइटिक सेल्स। HIV का क्लास हो चुका है। HIV RNA वायरस और DNA वायरस, RNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस, ठीक है। तो गोल ऑफ PEP halt viral replication before systemic infection is established. A retrospective study shows risk of seroconversion. Seroconversion क्या है? What is the seroconversion? It is a process body has started produce detectable antibody against the particular infections, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पेशेंट है, एक पर्सन है, ठीक है, वो HIV से इन्फेक्ट, वो NSI से इन्फेक्ट हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, immune system will respond, then antibody produce, then blood test become positive. These changes called as seroconversion. समझ में आया? तो रिस्क ऑफ seroconversion 81% lower in healthcare professionals who took AZT PEP, ठीक है। Several animal studies showing efficacy. Perinatal prophylaxis has been effective. Perinatal means during birth, ठीक है। PEP HIV ड्रग रेजिमेन, ठीक है, दो रेजिमेन है, बेसिक रेजिमेन एंड एक्सपेंडेड रेजिमेन, ठीक है। बेसिक रेजिमेन में 2 ड्रग्स यूज होता है, बट इन एक्सपेंडेड रेजिमेन में 3 ड्रग्स, ठीक है। जो बेसिक रेजिमेन में क्या है, जाइडोविडिन, यही है AZT, ठीक है। उसके बाद दो ड्रग है, लेमिविडिन, और उसके बाद एक्सपेंडेड में 3 है, बेसिक रेजिमेन प्लस लास्ट वाली है इंडिनेविर, ठीक है, और एक और है नेल्फिनेविर, ठीक है। ये ड्रग्स का नेम है, ठीक है। फर्स्ट जो बेसिक रेजिमेन में है उसमें 2 ड्रग यूज कर सकते हैं, दो ड्रग यूज है, और एक्सपेंडेड में है बेसिक रेजिमेन प्लस एड 1 ड्रग।
पीईपी एचआईवी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। नाको मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू नाको गाइडलाइंस ये डिवाइडेड किया गया एक्सपोजर एंड सोर्स कोड, ठीक है। तो सबसे पहले EC1 मतलब एक्सपोजर कोड। क्या होगा एक्सपोजर? म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज्ड, स्मॉल वॉल्यूम, फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड, शॉर्ट ड्यूरेशंस, ठीक है। EC2 में म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन इंटीग्रिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड सेवरल मिनट और मोर। देन परक्यूटेनियस एक्सपोजर में क्या होगा? लेस सीवियर, सॉलिड निडल एंड सुपरफिशियल स्क्रैचेस, ठीक है। फिर एक्सपोजर 3 में परक्यूटेनियस, मोर सीवियर, हॉलो निडल, मेजर वुंड एंड ब्लडी डिवाइसेस। ठीक है, ये कोड डिवाइडेड है EC1, EC2, EC3। फिर आता है सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड 1 में क्या है? HIV पॉजिटिव, लो टाइटर एक्सपोजर, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक विथ हाई CD4 काउंट्स। सोर्स कोड 2 में HIV पॉजिटिव, हाई टाइटर एक्सपोजर, एडवांस एड्स, प्राइमरी HIV इन्फेक्शंस, हाई वायरल लोड और लो CD4 काउंट्स। अननोन सोर्स, ठीक है, अननोन पेशेंट, स्टेटस और सोर्स इज अननोन। अब क्या होता है इसमें, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। तो इसमें एक्सपोजर एंड सोर्स दोनों है। तो फॉर द EC कोड 1 एंड SC कोड 1 के लिए पीईपी में भी वारंटेड, EC1 एंड सोर्स कोड 2 के लिए कंसीडर बेसिक रेजिमेन। बेसिक रेजिमेन जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ट्रू ड्रग्स यूज्ड, ठीक है। EC2 एंड SC1 में रिकमेंडेड बेसिक रेजिमेन, मोस्ट एक्सपोजर इन दिस कैटेगरी, सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में एक्सपोजर होता है। EC2 एंड SC2 रिकमेंडेड एक्सपैंडेड रेजिमेन, ठीक है, बेसिक रेजिमेन प्लस एडिशनल 1 ड्रग। EC3 एंड सोर्स 1 और 2 रिकमेंडेड एक्सपैंडेड रेजिम 2 और 3। अननोन पेशेंट कंसीडर बेसिक रेजिम। समझ में आया? ठीक है, ये है हमारा ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नाको गाइडलाइंस, ठीक है। सोर्स कोड एंड एक्सपोजर कोड ये पूछा जाता है एग्जाम में। एंटी रेट्रो वायरल फॉर पीईपी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, HIV RNA वायरस है। RNA को DNA में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा? एंजाइम, विच एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो RNA से DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से RNA से DNA कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो वायरल DNA इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल DNA, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI शॉर्ट फॉर्म, ज्यूडीन एंड लेमिविडिन। फिर NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। नेविरिपिन नॉट रिकमेंडेड। प्रोटीएसेस इनहिबिटर्स, नेल्फिनेविर एंड इंडिवेनिर, ठीक है। फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। Those who healthcare professionals who have been vaccinated, the vaccine offers virtually complete protection to responders, ठीक है। आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ठीक है। Hence all healthcare professionals should be hepatitis B vaccinated. Bad news for those most healthcare professionals are not vaccinated, ठीक है। 6 to 10% of vaccine do not develop antibody. Repeat vaccine series 30 to 50% respond. Really bad news for the CDC, Center for Disease Control and Prevention, estimate that 50 to 75% healthcare workers die from hepatitis B each year, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस वैक्सीनेटेड एंड नॉट वैक्सीनेटेड। फॉर द वैक्सीनेटेड चेक द, अगर आप
एक्सपोज हो जाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले चेक द एंटीबॉडी टाइटर, ठीक है। इफ मोर देन 10 IU per ml देन नो एडिशनल ट्रीटमेंट, समझना, ठीक है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, तो चेक द एंटीबॉडी टाइटर, ठीक है। एंटीबॉडी टाइटर more than 10 IU per ml, then no additional treatment, right? Then additional antibody titer less than 10 IU per ml, then patient HBsAg negative, unknown sources या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। 3 कैटेगरी है, पहला है फॉर द नेगेटिव, अननोन सोर्सेज एंड पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, ठीक है। फॉर द नेगेटिव एंड अननोन सोर्सेज बूस्टर डोज और कंप्लीट सीरीज, ठीक है। यू हैव टू टेक बूस्टर डोज। बट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के लिए क्या है, बूस्टर डोज और कंप्लीट सीरीज प्लस हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज नॉट वैक्सीनेटेड, उनके लिए क्या है, इमीडिएट वैक्सीन विद इन 7 days along with HB हीमोग्लोबिन हेपेटाइटिस हीमोग्लोबिन जी, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के लिए क्या होता है, पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट, डिटरमाइन स्टेटस ऑफ सोर्स anti-HCV, नो एक्टिव प्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट इफेक्टिव, इंटरफेरॉन नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ब्लड टेस्ट इमीडिएटली एंड 6 month, विद इन 6 month, ठीक है। LFT एंड anti-HCV एट 4 to 6 month, ठीक है। रैपिड टेस्ट, वायरल मार्कर, हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV, ICT नेक्स्ट क्लास उसी पे है, ठीक है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, बी निडल स्मार्ट, ठीक है। अब बताओ, निडल बहुत स्मार्ट है, ठीक है। सो डू नॉट रिकैप, डू नॉट बेंड, डू नॉट रिमूव एंड डू नॉट ट्रांसपोर्ट एंड डू नॉट रीयूज, इतनी चीजें आपको फॉलो करना है। दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स व्हिच कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्टियस डिजीजेस, ठीक है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए इसमें, additional precaution taken over and above the standard precautions, where standard precautions may not be sufficient based on specific mode of transmissions. Route of transmission, 2 routes, direct and indirect, ठीक है। host come into contact with reservoir, kissing skin to skin contact, sexual intercourse, contact with soil or vegetations. Indirect contact में disease is carried from reservoir to host, contaminated surfaces, example dressing, gloves and stethoscope, ठीक है। this is the indirect contact, this is the direct contact. route of transmission, first fecal route, feces, contaminated food, environment, vector borne, transmitted by insect, mosquitoes, flies, ticks, etc. and respiratory airborne routes, coughing and sneezing. These 3 route of transmission. Large droplets within approximate 1 meter transmit infections via coughing, sneezing, talking, ठीक है। और medical procedures, example diphtheria, pertussis, whooping cough, meningococcal meningitis and respiratory syncytial virus. Very small particles of evaporated droplets or dust with infectious agent may remain in air for a long time, travel further than droplets, become aerosols generated during any procedure. Example tuberculosis, Legionella, measles and Versicolor zoster viruses. Chain of infections, infectious agent bacteria, it may be bacteria, virus, fungi, reservoir कौन कौन हो सकता है, people, environment, equipments and water. Portal of exist, excretion, secretion, skin and droplets. Mean of transmissions, direct and indirect contact, inhalation and airborne. Portal of entry, mucous membrane, respiratory and GI tract, broken skin. Susceptible host, patient, staff and visitors, ठीक है। This is the chain of infections of healthcare workers.
ब्रेकिंग ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, कैसे ब्रेक करना है, हाउ टू ब्रेक, इक्विपमेंट क्लीनिंग, हैंड हाइजीन, कंप्लायंस विद टाइप्स, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, लिख लो। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, हैंड हाइजीन, गाउन, ग्लव्स। ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में हैंड हाइजीन, मास्क। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस में हैंड हाइजीन, निगेटिव प्रेशर रूम, N90। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड एंड ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, अप्लाई टू पेशेंट विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एंड और डिजीज, प्रेजेंस ऑफ स्टूल इनकॉन्टिनेंस, नोरोवायरस, रोटावायरस एंड क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया। ठीक है, एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वुंड इन्फेक्शंस। ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस। MDRO का मतलब, व्हाट इज द MDRO? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, MRSA मेथिल रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एंड CRE कार्बापेनम रेजिस्टेंट इंटेरोबैक्टीरियसी। What are the precautions? First is isolations. ठीक है, individual room, cohorting is desirable. More than 3 feet spatial separation between beds. Patient movement confined to room. If transfer is required, first you have to hand hygiene, proper PPE. Patient colonized area must be covered. Patient dedicated equipments, stethoscope, BP cuff, nebulizer for single patient only. ठीक है, must be disinfectant before reuse and also hand washing before and after contact. Last is environmental cleaning, floor, cloths, toilet and equipments cleaning with appropriate disinfectant. Contact precautions सबको करना चाहिए। ठीक है, क्लीन दियर हैंड्स इंक्लूडिंग बिफोर एंड एंटरिंग व्हेन लिविंग द रूम। ठीक है, प्रोवाइड्स एंड स्टाफ मस्ट आल्सो फॉलो। पुट ऑन ग्लव्स बिफोर रूम एंट्री, डिस्कार्ड ग्लव्स बिफोर रूम एग्जिस्ट। ठीक है, पुट ऑन गाउन बिफोर रूम एंट्री, डिस्कार्ड गाउन बिफोर रूम एग्जिस्ट। डू नॉट वियर द सेम गाउन एंड ग्लव्स फॉर द केयर ऑफ मोर देन 1 person. Use dedicated or disposable equipments, clean and disinfectant reusable equipments before use on another person. ठीक है, ड्रॉपलेट्स प्रिकॉशन में क्या होगा, लार्ज पार्टिकल respiratory droplets more than 5 micron from a source patient, coughing, sneezing. ठीक है, certain procedure, example suctioning, influenza, parainfluenza, adenovirus and RSV. RSV का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया, respiratory syncytial viruses, meningitis and mycoplasma. Isolation is must essential. It's single room not available. Cohorting, spatial separation more than 3 feet. ठीक है, negative pressure room is desirable. Patient movement, restricted movement of the patient. Wear surgical mask while leaving the room. Surgical mask, healthcare worker while entering the room. ठीक है, perform hand hygiene before and after touching, after contact with respiratory secretion and contaminated object materials. इसमें क्या होगा, clean their hand including before entering when leaving the room. Second, make sure their eyes, nose and mouth are fully covered before room entry. Remove face protections before room exits. Last is airborne precautions. एयरबॉर्न प्रिकॉशन में क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल रिड्यूस लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, देन दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. वर्सिला, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हर्पीज जूस्टर. प्रिकॉशन में क्या होगा, आइसोलेशन. फर्स्ट इज आइसोलेशन, प्लेस इमीडिएटली इन एयरबॉर्न इन्फेक्शंस आइसोलेशन रूम. Adequate ventilation with negative pressure facility.
Patient movement confined to the room all the time. PPE. Staff should wear high efficacy mask N95 before entering the room. Patient may wear surgical mask all the time. Airborne precautions. Clean their hands including before entering and when leaving the room. Put on fit tested N95 high level respirator before room entry. Remove respirator after exiting the room and closing the door. Door to room must remain closed.